of our system. So in the second term, if my screen is visible to all of you, I hope it is visible to everyone. In second term we will be studying 4 topics, okay? And all the 4 topics, they are very important, with respect to um, your papers, your bifurcations and everything. मैम मेरी अभी ज़रा क्लास है, मैं आपको ना बाद में बताऊंगी. अच्छा जी. So girls, if my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay, so these are the 4 topics which we will be studying in this term: reactivity, salts, rate of reactions, and electricity. Okay, we have studied forces in action in the previous term. Now in this term we will be studying this topic, which is electricity. Okay, in the very first topic which we will be studying in term 2, that is our 5th unit. It's 4th, yes, electricity, and 5th is reactivity. So in this topic, reactivity, the very first attainment targets, I'm just discussing the attainment targets with you, so you should know. आप बेशक इसकी screenshots ले लें. ये attainment targets हमने fulfill करने हैं. So the very first attainment target is, we will be studying this in this term. Know that metals have different levels of reactivity, and not in different groups but also within a group. So basically we will be studying specifically in detail about periodic table. ठीक है, पहले हमने पिछली क्लासेस में पीरियोडिक टेबल को डिटेल में स्टडी किया, लेकिन हमने उसको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे स्टडी किया. नाउ ये जो अब हमने स्टडी करना है, हमने उसके केमिकल रिएक्शंस और रेट ऑफ रिएक्शन, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केमिस्ट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल नाउ. Okay, so in this chapter we will be studying that how metals react with different elements, different other elements. Okay, now investigate how different metals react with oxygen, cold water, steam, dilute acids, strong acids. Okay, so we will be studying about different types of metals reacting towards different types of solvents. And then know that reactivity series show the metals in order of their reactivity, with the most reactive at the top. So we will be studying the reactivity series in this chapter. Reactivity series is basically एक ascending order में arrange किया हुआ है, जिसे हम reactivity series कहते हैं, elements को. ठीक है, irrespective of their group, on the basis of their reaction. ठीक है, अब हम बहुत ज्यादा बेसिक्स से स्किप करके थोड़ी हमारे एडवांस लेवल की तरफ आ रहे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो किस्म के दो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ये मिक्स करते हैं किसी भी हीट या एसिड की प्रेजेंस में, और मिक्स करके एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हैं. जो न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है दैट इज नोन एज अ कंपाउंड. एंड वो जो न्यू सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है, वो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने उसके एलिमेंट से बिल्कुल भी मैच नहीं करती. तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, और जो आपके कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी ये सब कुछ पढ़ा था. नाउ then we will be studying about all the या आपको रिएक्टिविटी सीरीज सारी याद करनी पड़ेगी इसमें, इस टॉपिक में. एंड सर ट्रिकी वन, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इसके हम वैसे
मतलब उसकी कोई एक बना लेंगे उसके स्लैंग्स जिससे आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहे, बट इट्स अ सीरीज ऑफ अराउंड 10 to 15 एलिमेंट्स। बेसिकली इसमें ये आप कह सकते हो कि आपने पीरियोडिक टेबल याद नहीं करना है इटसेल्फ, बट 10, 15, 20 मेटल्स की कुछ रिएक्टिविटी सीरीज एक याद करनी है। So then we will be studying that, recognize that a more reactive metal displaces a less reactive metal. So these are different types of chemical reactions. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं इन्हें, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के किस किस्म के रिएक्शंस मेटल्स के साथ होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में, ये जो हमारा चैप्टर है विच इज द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, इसके अंदर हमने ये स्टडी करना है। Okay, so today's lesson is going to be on this website. I'm sharing this on your stream, जो हमारा लिंक है आज के लेसन का, ठीक है। इसके ऊपर ये सारी डिटेल्स इसकी दी हुई है। Okay, so let's dig into it now. All right, so activity of metals, that is basically our today's topic. So the primary difference between, basically, as I have told you before, in this topic, in this chapter, we will be studying about reactions and rates of reaction of metals, ठीक है। मेटल्स किस तरीके से किन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे वो मेटल्स उनके साथ रिएक्ट करते हैं, उनकी एक्टिविटी कितनी होती है, वो तेजी से रिएक्ट करते हैं या वो आहिस्ता रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और ये काफी सारी चीजों पे डिपेंड करती है जो एक्टिविटी ऑफ मेटल्स है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली एक तो एलिमेंट है ना, कि एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। अब एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि एलिमेंट कितना स्टेबल है, ठीक है। आपने पिछले टर्म में पढ़ा था एक टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर दूसरा टॉपिक आपने पढ़ा था एनर्जी चेंजेस। बेसिकली एनर्जी चेंजेस में भी आपने यही पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपने यही पढ़ा था कि एटम किस तरीके से स्टेबलाइज होता है, ठीक है। बॉन्डिंग हमने पढ़ी कि जब एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को, बेसिकली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जो फुलफिल करनी होती है, और जितना वो उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उसके अंदर एक लैप्स होता है उसके जो डिफरेंस होता है एक एलिमेंट के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो बेसिकली वो कवर करता है बाय क्रिएटिंग बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। और वही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है एक्टिविटी ऑफ मेटल्स में या रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। जो ज्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं, जो ज्यादा स्टेबल मेटल्स हैं, दे आर एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, and which are less stable elements, they are at the top of the reactivity series, ठीक है। जितना एटम स्टेबल होता जाता है उतनी उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है, ये जनरल नॉलेज की चीज है कि उसको उतनी ही कम जरूरत है रिएक्शन करने की, ठीक है। जितना एलिमेंट जो है वो स्टेबल है, जितना वो अनस्टेबल है उतनी उसे ज्यादा जरूरत है एलिमेंट्स की, और उतना ही वो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं, जो हमने नॉर्मली कैजुअली पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़े हैं, वो हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स यानी कि हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बनाते हैं। अभी तक हमें ये पता है, ठीक है। अब बेसिकली ग्रुप नंबर 1 में एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ये सिर्फ एग्जेम्प्टेड है बिकॉज हाइड्रोजन इज ए गैस, इट इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन के अलावा बाकी लिथियम से लेके सीजियम तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, ओके। एंड द एक्टिविटी और द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाती है।
क्योंकि एटम ज्यादा बड़ा होता रहता है, जितना एटम ज्यादा बड़ा होगा उतना वो अनस्टेबल होगा। ये बेसिकली बड़ा इस सेंस में नहीं है, बड़ा है उसके न्यूक्लियस के साइज के सेंस में। नीचे वाले जो सीजियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेसिकली उसका शेल एक ही है, लेकिन उसका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा है। ओके, सो द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स इज द ईज विद विच दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुछ एलिमेंट जो हैं वो आसानी से केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, उन्हें हम रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें हम अनरिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। गर्ल्स, आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. Okay, so the elements towards the bottom left corner of the periodic table are the metals that are the most reactive in sense of being most active, in the sense of being the most reactive. Okay, so bottom left, लेफ्ट में मतलब ग्रुप नंबर 1 जो है आपके पास, ग्रुप नंबर 1 में सबसे जो नीचे वाला एलिमेंट है फ्रेंसियम जो है, दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव। सीजियम उससे कम रिएक्टिव है, रुबिडियम उससे कम रिएक्टिव है, पोटेशियम उससे कम रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव है, लिथियम उससे कम रिएक्टिव है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्रेंसियम है और सबसे कम रिएक्टिव लिथियम है, बट स्टिल दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, जो ये ग्रुप नंबर 1 के अंदर है, ये ग्रुप नंबर 1 में है ही इस वजह से बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, नाउ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऑल रिएक्ट विद वाटर। ओके, नाउ वाटर इज अ सॉल्यूशन, वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है विच इज अ वेरी न्यूट्रल सॉल्वेंट। ओके, ये न्यूट्रल है, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के अंदर पार्ट लेता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? एनीवन हु कैन टेल कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? जी, मैम, जिसमें आप रिएक्शन देते हो उसके पीएच को चेंज कर देते हैं और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। गर्ल्स थोड़ा सा इसकी तरफ आए। आपने पहले, क्योंकि अब हमने स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक बता दिया दोबारा। वैसे आपको भी पता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर एटम्स रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है और वो किस किस चीज के साथ रिएक्टिव है। ठीक है, अब जब रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन की जब बात होती है, केमिकल रिएक्शन में वाटर जो है वो एक ऐसा सॉल्वेंट है जो हर चीज को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज का मतलब है कि उसकी पीएच 7 होती है। अब अगर आप किसी भी चीज में, अगर फॉर एग्जांपल कोई एसिड है, एसिड के अंदर आप पानी डाल दें तो वो उसको डाइल्यूट कर देगा। ठीक है, एसिड, और एक वक्त ऐसा आएगा कि एसिड की कंप्लीटली प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी और सिर्फ वाटर उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देगा। इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आप पीएच जो है वो 7 के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होते हैं एसिड्स और एक हमारे पास होती हैं बेसिस या एल्कलीज। ठीक है, बेस और एल्कली इज द सेम थिंग। अब एल्कलीज या बेसिस की जो पीएच होती है दैट इज अप टू 14 पीएच की अगर कोई बेस है, इट मींस इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एंड जो हमारे पास दूसरी साइड पे एसिड्स में, अगर आपका कोई 1 या 0 पीएच का एसिड है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड्स में जितनी एसिड की पीएच कम होती रहती है उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता रहता है,
और एल्कली की जितनी पीएच ज्यादा होती रहती है उतना एल्कली स्ट्रांग होता रहता है, ठीक है। एसिड की एक्टिविटी है जितना वो कम है उसकी पीएच, और एल्कली की एक्टिविटी है जितनी उसकी पीएच ज्यादा है। और पीएच स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, 14, ठीक है, 1 4। अब इसमें 7 इज द पीएच जो न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है कि मतलब अगर कोई एसिड है, आपने उस एसिड के अंदर एल्कली ऐड करनी है और उस एसिड की पीएच को 7 तक लेके आना है, ठीक है। जब उसकी पीएच 7 हो जाएगी इट मींस कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका मतलब है न्यूट्रल हो गया वो, कि उसकी पीएच न्यूट्रल हो गई है। बिकॉज 7 पीएच जिन चीजों की होती है दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। बेसिस और एसिड्स ये दोनों बहुत रिएक्टिव हैं, हर चीज के साथ रिएक्शन कर देते हैं, लेकिन वाटर जो है इसकी पीएच 7 होती है, ये बहुत कम चीजों के साथ रिएक्शन शो करता है, डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करने का मतलब रिएक्शन शो करना नहीं है, रिएक्शन है जब वो केमिकली रिएक्ट कर रहा है किसी चीज के साथ, ठीक है। अगर वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है इट डजंट मीन्स कि वो डिसॉल्व भी हो रहा है, ऑल्दो डिसॉल्विंग में केमिकल रिएक्शन हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है। डिसॉल्विंग तो एक फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल प्रोसेस है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से गर्ल्स? So Yes, ma'am. the rate of reaction increases as we go down the group. So we will be studying different patterns Yes, of ma'am. rate of reaction, कि rate of reaction कैसे ज्यादा होता है और कैसे कम होता है, ठीक है। और कौन से मेटल्स ऐसे हैं, बेसिकली इस चैप्टर में हमने मेटल्स का रिएक्शन देखना है, नॉन मेटल्स को हमने नहीं टच करना, वी विल बी ओनली टचिंग द मेटल्स। Now classifying the metals upon the base of their activity. Now, metals can often be divided into 4 classes on the basis of their activity or reactivity. एक ही बात है, as shown in the table below. So, the common metals they are divided into classes, 4 classes on the basis of their activity. Now, class number 1 are the metals which are known as the active metals. ठीक है, we are not discussing about the groups over here, ठीक है। यहां हम ग्रुप्स की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रुप्स और पीरियड से बाहर निकल रहे हैं। ग्रुप और पीरियड की हम बात कर रहे थे तब तक जब तक हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। अब हम ओवरऑल मेटल्स की बात कर रहे हैं कि कौन से मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से मेटल्स कम रिएक्टिव हैं, ठीक है। So the most reactive of the metals are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मेटल्स जो हैं जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दे आर इन ग्रुप नंबर 1, एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium these are in group number 2 of the periodic table. These are the most reactive metals on the basis of their electronics configuration, on the basis of their atomic structure. These are the most reactive of the metals, okay. Then why do we call them as they are most reactive? Let's read it out from over here. The most reactive metals or the most active metals are so reactive that they readily combine with the oxygen and water vapor in the atmosphere and are therefore stored under an inert liquid such as mineral oil. Okay, so इससे भी पहले let me give you some definitions for today. All right, send. Okay, so basically girls इसमें हमारे पास ना कुछ टर्म्स हैं
the key terms which we will be using in this chapter. Okay, number one is dilute. What is the meaning of dilute? It means that it has more solvent and less solute. Okay, being dilute, it means it has more solvent and less solute. Then the second term is concentrated. It means that it has more solute and less solvent. ठीक है, अब अगर इससे भी हम नीचे जाएं और सोल्यूट और सॉल्वेंट को देखें, तो सोल्यूट होता है which is being dissolved. ठीक है, जिस चीज को आप डिसॉल्व कर रहे होते हो. और सॉल्वेंट होता है in which solute is dissolved. ठीक है, जिसमें सोल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं. नाउ इसके बाद हमने जो आज का चैप्टर है, इसमें है रेट ऑफ रिएक्शन. एक हमारे पास टर्म जो बहुत ज्यादा हमने यूज करनी है. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन मींस द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. Okay, this is rate of reaction. And what is a chemical reaction? A chemical reaction is a reaction in which two elements, two or more than two, ठीक है, दो या दो से ज्यादा elements chemically combine together to form a new substance. ठीक है, it is a chemical reaction. Rate of reaction है speed of the chemical reaction. अब इसके बाद हमने टर्म ये बहुत यूज करनी है, रिएक्ट रेडिली. रेडिली, ठीक है, रेडिली या रिएक्ट रेडिली का मतलब है कि इट इज रिएक्टिंग एट अ वेरी फास्ट रेट. ठीक है, फास्ट रेट के ऊपर रिएक्ट कर रहा है जो भी एलिमेंट है. ठीक है, और इसके बाद इनर्ट, स्लो, it means slow or minimum reaction. ठीक है, स्लो या मिनिमम रिएक्शन शो कर रहा है. ठीक है, so these are some of the terms which we will be using in this chapter. ठीक है, आप इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें. एंड देखिए, टर्म 2 का सिलेबस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जो बाइफरकेशन है वो टर्म 2 का सिलेबस भी उसमें ऐड होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी. बाइफरकेशन होने कब है? आपको बता देंगे डेट स्कूल वाले, जल्दी होने हैं, ये नहीं है कि होने नहीं है. एनीवेज, ओके मैम. सो ये क्लियर है टर्म्स सबको? इनमें कोई क्वेश्चन है? नो मैम. इसके नीचे मैं की टर्म्स लिख देती हूँ बल्कि. Okay, so these are basically the key terms for today. बोल्ड करना है, इसे मैं कैसे बोल्ड करूँगा? Whoa, it's not getting bold. Okay, so now
अब इसके ऊपर आते हैं, बेसिकली हमारा टॉपिक है ये एक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। Now, the most reactive metals are so reactive that they readily combine with oxygen and water vapor in the atmosphere and are therefore stored under an inert liquid. ठीक है। अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ये जो क्लास वन के मेटल्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये वो मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। ये इतने रिएक्टिव हैं कि ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है या जो वाटर होता है उसके साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। आप एटमॉस्फेयर के अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये रह ही नहीं सकते। अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी प्योर फॉर्म रखेंगे, ये उसी वक्त रिएक्ट हो जाएगी और बहुत रेडिली रिएक्ट होगी, मतलब बहुत तेजी से रिएक्ट होगी, ठीक है। इसके बाद क्लास टू मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू क्लास वन मेटल्स। क्लास टू मेटल्स आर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज, Mn stands for manganese and Mg stands for magnesium. Now these are less active metals, means they do not react with the atmospheric water or oxygen. They will only react with water, they will only react with acids at room temperature. They will not react with water at room temperature. ये जो सेकंड क्लास के एलिमेंट्स हैं, ये वाटर या ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते, ये सिर्फ एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम डाइल्यूट एसिड्स की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, इसका मतलब है ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ तो फिर करते ही हैं रिएक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्लास which is this one, class 3 metals, the structural metals. It is chromium, Cr, Fe, iron, Sn, tin, Pb, lead, Cu, copper. Okay, so these are the structural metals. What is the property of these metals? That they only react with strong acids. ठीक है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। अभी ये तो मैं आपको जनरली बता रही हूँ ना, आप लोगों ने इसकी बेसिकली डिफरेंट एग्जांपल्स भी याद करनी है, आपकी बुक के अंदर गिवन है इसकी जो मुख्तलिफ मतलब केमिकल इक्वेशंस हैं इसके रिएक्शंस की, ठीक है। सो आप एग्जांपल्स भी याद करेंगे जो बुक में गिवन है। Now it also contains even less active metals such as copper, which only dissolves when treated with acids that can oxidize the metals. So basically सबसे ज़्यादा reactive हैं class 1 metals, which are the most reactive. Then the second class metals, which are magnesium, aluminium, zinc, and manganese. These are less reactive as compared to class 1. Then the metals which are in class 3, they are less reactive than class 2. ठीक है, ये class 2 से भी कम reactive हैं. They only react with strong acids. Class 1 वाले जो हैं ये किसके साथ react करें? They readily combine with oxygen and water vapor in the atmosphere. ये एटमॉस्फेयर के ही साथ कंबाइन हो जाते हैं, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव है। फिर उसके बाद सेकेंड क्लास के मेटल्स जो हैं ये रैपिडली रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ भी। फिर जो क्लास 3 हैं ये वाले, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्ट्रॉन्ग फॉर्म, इनकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हैं pH 1 या pH 0, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। Now then there are fourth class metals which are so unreactive that they are essentially inert at the room temperature, which are known as the coinage metals. Okay, the coinage metals are silver, Ag, Au is gold, Pt is platinum, Hg is mercury. Silver, gold, platinum, mercury.
ठीक है। ये जो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम और मरकरी हैं, ये रूम टेम्परेचर पे किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये इनर्ट है। इनर्ट है मतलब ये रिएक्शन शो नहीं करते रूम टेम्परेचर। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड, आइडियली दे कैन बी यूज्ड टू मेक ज्वेलरी और कॉइन्स। पहले एज यू नो, मोस्टली आप लोगों ने ड्रामों में देखा होगा कि पुराने जमाने में लोग जो होते थे ये कॉइन्स को बनाते थे अशरफियों की फॉर्म में। अशरफियां होती थी उस जमाने में, लाइक 400 to 500 years ago। गोल्ड की अशरफियां होती थी, सोने के कॉइन्स होते थे, ठीक है। अब तो खैर इट इज नॉट पॉसिबल, बट खैर उस वक्त गोल्ड के कॉइन्स होते थे। और उस वक्त गोल्ड के कॉइन्स बनते इसलिए थे बिकॉज इट वाज वेरी वैल्यूएबल। Okay, so and it is valuable, why? Because it is not reactive। अब ये देखें ना, हम सिल्वर की भी ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर फिर भी रिएक्टिव है। गोल्ड जो है वो उससे भी ज्यादा कम रिएक्टिव है। प्लैटिनम बहुत ही कम रिएक्टिव है। मरकरी भी बहुत कम रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं शो करता। बट जस्ट ये जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड मरकरी, दे ऑल आर टॉक्सिक, which means that they are poisonous if they are engulfed। ठीक है, अगर आप उसको खा लो, आपके मुंह में चले जाएं, देन दे आर टॉक्सिक, पॉइजनस होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए। सो स्किन पे ये पॉइजनस नहीं होते, बट इफ यू engulf it then they are poisonous। So these metals are ideal for making jewelry or coins, but they do not react with vast majority of the substances with which they come into daily contact। So as a result, they are often known as coinage metals। Okay, is it clear? Yes, ma'am. Okay, girls, I have shared the link of this website with you. As you can see, it was today. This is the link to today's lesson, and I will try to share the video of today's lesson too। अब पिछले वाले जो lessons गुजर चुके हैं उनकी वीडियोस अब मेरे पास नहीं हैं, बट ये वाले जो लेसन है इनकी मैं शेयर कर दिया करूंगी, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब आप आधे बच्चे ले रहे होते हैं क्लास, आधे नहीं ले रहे होते हैं, नहीं हाउ। बट प्लीज यू आर, इस टर्म में हमारा थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़े से चेंज हो गए। इफ द ऑनलाइन लर्निंग कंटिन्यूज, इफ इन केस it depends on the decision of the government, then we will be allotting some marks to online attendance as well। So it is necessary to be present in the online class। अगर आपको बाद में क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, दैट इज समथिंग एल्स। रिकॉर्डिंग में आप प्लीज गर्ल्स क्लास में आए, क्वेश्चंस पूछें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। बट आफ्टर क्लास शाम को, रात को मुझे मैसेजेस करके क्वेश्चंस ना पूछा करें प्लीज। आप क्लास में क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछते? क्लास में आप लोग कहते हैं कि नहीं जी मैम हमें सब कुछ समझ आ गई है, उसके बाद जब आप लोग खुद पढ़ते हैं